Now let's move on to next illustration. So the next illustration says the area of the rhombus be 24 centimeter square and one of its diagonals be 4 centimeter. Find the perimeter of the rhombus. We have to find the perimeter of the rhombus. But for finding perimeter का formula क्या होता है? 4a. Perimeter is what? 4a. And a is what? Under root of p square plus q square by 2. And pq are what? pq are the different two डायगनल्स ऑफ द रोम्बस. हमने पहले भी पढ़ा है कि हम जब एरिया भी निकालते तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 करते हैं. तो मतलब दो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के. तो एक डायगनल ऑलरेडी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. हमें दूसरा डायगनल फाइंड आउट करना है और वो डायगनल फाइंड आउट करने के बाद हमें a में वैल्यू पुट करनी है एंड देन a इज प्लेस्ड इनटू 4a टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल p इंटू q अपॉन 2 is equals to what? Area of rhombus. Area of rhombus is given as 24 and p is given as what? 4. So 4 into q upon 2 equals to 24. So q is equals to what? 24 into 2 upon 4. So 4 6 are 24. 6 2s are 12. 6 2s are 12. It becomes 12. So now we have the other diagonal to be 12 centimeter. 12 centimeter. मतलब P भी निकल गया और Q भी निकल गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? A. तो A फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? P और Q को प्लेस करेंगे. So Q is what? 12. Q is 12 and P is what? 4. Putting it in this formula, A equals to under root P square plus Q square by 2. Then now p square is what? 4 square, which is nothing but 16, plus q square is what? 12. 12 into 12 is what? 144 upon 2. So now this becomes 6 plus 4 10, 6 plus 4 10, then 1 plus 4 5 6 160 upon 2. So now this isn't a perfect square. So you have to represent this in the form of root only. You have to represent this in the form of root only. So how can we represent it? 160. 160. Now 2 8s are 16, 0, 2 4s are 8, 0, 2 20, 2 10, 2 5. 5 means 5 is what? Left over. So we have, no, 10 is left over. So we can write 2 2s are 4, 4 root 10. We can write 4 root 10. We can write under root 160 as 4 root 10. 2 2s are 4. This means we can write it as 2 root 10. Whole as 2 root 10. So now this is what? A. This is what? A. Placing this A into perimeter of rhombus means 4A. So placing it in the formula 4A. So we will get perimeter as 4A. So we will get what? 4 into A is what? 4 into A is what? We have already find out 2 root 10. 2 4s are 8, 8 root 10. So this means this is your perimeter for the given rhombus. This is the perimeter for the given rhombus. You can place the value of root 10 also here if you have to calculate it further. नहीं तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें हमें सिर्फ perimeter of rhombus निकालने को बोला है. तो you can find the perimeter of rhombus in these steps. Next is, an ant is moving around a few food particles of different shapes scattered on the floor. For which food particle would the ant take to take a longer round? 3 shapes हमें given है, first, second and third. In this we have to find अगर एक ant जो है, एक चींटी जो है वो इन सारे shapes का चक्कर लगा रही है तो वो किस shape में सबसे ज़्यादा चक्कर लगा रही है, मतलब वो किस शेप में सबसे लॉन्गेस्ट चक्कर लगा रही है. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? उसका पैरामीटर. तीनों शेप्स के पैरामीटर में से हमें कंपेयर करना है कि किसका पैरामीटर ज़्यादा है, किसका पैरामीटर ज़्यादा है. सो टू फाइंड आउट दिस व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम इसका पैरामीटर देखें तो क्या होगा? दिस इज अ सेमी सर्कल. This is a semicircle. So the perimeter of semicircle is what? Nothing but pi r. It is pi r. So we can put it as 22 by 7.
22/7 into r. R is, this is 2.8, whole is 2.8. So r will be what? 1.4. So this means 14/10. 7 2s are 14. This will become 4.4. This will become 4.4. This will become 4.4. So we have to find the perimeter for this and this now. So finding for the second figure. For the second figure, if we see this whole figure as this, वैसे तो हमें सिर्फ इसका बाउंड्री निकालना है और इस सेमी सर्कल की बाउंड्री निकालनी है, लेकिन सबसे पहले हम इसका पैरामीटर अगर मैं निकालना चाहूँ तो दिस इज 1.5, दिस इज ऑल्सो 1.5, दिस इज 2.8, सो दिस इज ऑल्सो 2.8. तो अगर पैरामीटर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 विच इज 3 प्लस 3 प्लस then we have to find the perimeter of this boundary, this semicircular boundary. So when we have to find the boundary, when we have to find out the semicircular boundary, so what is the shape of this figure? So we can find out by अगर इस पूरे shape का अगर हमें figure निकालना है, just imagine this is the semicircle. This is 2.8. And this whole perimeter we have to find out. लेकिन अगर मैं semicircle का perimeter निकालती हूँ तो लास्ट में ये लाइन भी इंक्लूड होगी, लेकिन ये लाइन तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी? इस लाइन को लास्ट में एक्सक्लूड कर दूंगी. तो सबसे पहले तो हम इसका पाई आर को यूज करके निकालते हैं. तो हमने निकाला था, क्या आया था? 4.4. तो 4.4 माइनस क्या कर देंगे? ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 2.8. तो माइनस 2.8. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड फिगर. Cancelling this, we get 7.4 centimeter. 7.4 centimeter. So this is how we have to put logic and then find out कि किसका perimeter कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुछ figures ऐसे होते हैं जिसमें हम confuse हो जाते हैं कि कैसे हम उसको calculate कर सकते हैं. अब जैसे ये है, इस figure में we have to find out that what is the perimeter of this figure. So now we have 2 and 2. So simple, अगर थर्ड फिगर का perimeter निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम 2 और 2 को प्लस कर देंगे. 2 + 2 दोनों की बाउंड्री उसको ऐड कर दिया. अब ये मेरे को चाहिए, ये तो ये ऑलरेडी हमने निकाला है कि अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए हो जिसका डायमीटर 2.8 है, जिसका डायमीटर 2.8 है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल 4.4 माइनस 2.8. तो वही हम यहाँ करेंगे, 4.4 माइनस 2.8. सो फाइंडिंग इट आउट, 2 + 2 is 4, 4 + 4 is 8.4 minus 2.8. So finding it out, what we'll get? 2.8, 14, 7 minus 2, 5, 14 minus 8 is 6, 5.6. So we'll get 5.6 centimeter. 5.6 centimeter. This is 7.4, that is 5.6 and this is 4.4. तो तीनों में से सबसे ज़्यादा पेरीमीटर जो है वो किसका आया है? सेकेंड फिगर का. तो अगर चीटी जो है इस शेप का चक्कर लगाएगी तो वो सबसे ज़्यादा लेंथ का चक्कर इस शेप में लगाएगी. सो दिस हैज़ द हाइएस्ट पैरामीटर. सो दे आर आस्किंग किसका लॉन्गर राउंड होगा? तो सेकेंड फिगर का लॉन्गर राउंड होगा. विथ यू कैन टेल द डायमेंशन ऑल्सो. एग्जैक्ट रिजल्ट हम उन्हें बता सकते हैं. नेक्स्ट इज Mrs. Kaushik has a square plot as shown in figure. The square plot is in this figure. Then she wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. This dotted portion represents the garden. Find the total cost of developing garden around the house if the cost of developing a garden is rupees 55 per square meter. तो हमें क्या चाहिए होगा? गार्डन का एरिया, क्योंकि गार्डन का एरिया निकलेगा तभी हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे विद द कॉस्ट, सो दैट वी कैन फाइंड द होल आंसर. तो हमें गार्डन का इवेंचुअली हमें गार्डन का एरिया निकालना है. सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू
एरिया ऑफ गार्डन हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल सकते हैं, दिस इज एरिया ऑफ गार्डन, द शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ गार्डन हम कैसे निकाल सकते हैं? पूरे रेक्टेंगल का, पूरे इंक्लूडिंग गार्डन का अगर हम निकालेंगे 25 इंटू 25 माइनस 25 इंटू 25 माइनस जो इनर प्लॉट है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा? गार्डन का एरिया। तो माइनस करेंगे 15 इंटू 20, 15 इंटू 20, 15 into 20. Then we have 25 into 25 is 625 minus 15 2s is 30, 300. So we'll get 300. So we'll get what? 625 minus 300 is 5, 2 and 6 minus 3, 3. 325. So we'll get what? 325 centimeter square. Sorry, meter square. For गार्डन एरिया, गार्डन्स एरिया, ये गार्डन का एरिया है। अब इस गार्डन के एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कॉस्ट के साथ। तो गार्डन का एरिया निकला है कितना? 325। तो 325 है। अब इस 325 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 55 के साथ, सो दैट वी कैन फाइंड द होल अमाउंट फॉर पेंटिंग, वी कैन फाइंड द होल अमाउंट फॉर वी कैन से फॉर्मिंग द गार्डन, फॉर्मिंग द गार्डन। दिस इज द रुपीस। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 325 को 55 से, यू विल गेट द इवेंचुअली आंसर, इवेंचुअल आंसर। तो क्या करना है? हमें सिंपल एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। इस बात पे फोकस करना है कि हम कैसे एरिया ऑफ गार्डन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? उसमें कोई आपको ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू लुक एट दिस। पूरे एरिया, अगर पूरे एरिया को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दिस इज द होल एरिया, दिस इज द होल एरिया। इसमें से इनर प्लॉट को माइनस कर देंगे तो सिर्फ गार्डन वाला एरिया बचेगा। ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पैटर्न है ऑब्जर्व्ड पैटर्न है, इसको हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल यू हैव टू सबट्रैक्ट द इनर प्लॉट फ्रॉम द आउटर प्लॉट, यू विल गेट द रिमेनिंग पार्ट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एरिया फॉर द गार्डन। नेक्स्ट इज in a quadrilateral ABCD shown in figure 20.18, this figure, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AD is perpendicular to AB. Also AB equals to 8, AB is given as 8, BC is given as 5 and DC is given as 5. So we need to find the area of the quadrilateral. So the quadrilateral can be broken into two parts. दो पार्ट्स में हम क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक कर सकते हैं। पहला तो एक रेक्टेंगल जो कि ये है, दिस रेक्टेंगल, एंड द अदर इज दिस ट्राइंगल, एंड द अदर इज दिस ट्राइंगल। तो दोनों का एरिया जब हम सेपरेटली निकाल के ऐड करेंगे तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है? ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ बी ई सी, एरिया ऑफ बी ई सी। तो एरिया ऑफ ए ई सी डी कितना है? एरिया ऑफ ए ई सी डी के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ बी ई सी के लिए हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूले हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए हमारे पास लेंथ भी होनी चाहिए और ब्रेड्थ भी। तो लेंथ तो मेरे पास 5 आ गई, लेंथ इज 5। व्हाट इज ब्रेड्थ? क्या मेरे पास ब्रेड्थ है? दिस इज ब्रेड्थ, सो वी नीड ब्रेड्थ, बट वी डू नॉट हैव ब्रेड्थ। 8 minus 5 is 3. So this means the base of the triangle is also given, but the height of the triangle is equal to the breadth of rectangle which is not given. तो अब मेन टास्क हमारा, मेन फोकस किस चीज पे होगा कि हम ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो कि किसके इक्वल है? हाइट ऑफ ट्राइंगल के, उसे फाइंड आउट करें ताकि हम दोनों फिगर्स का एरिया इजीली निकाल पाए। सो टू फाइंड आउट दिस we can apply a simple theorem called Pythagoras theorem. Just have a look at this triangle. इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। अगर मुझे EC निकालना है, EC and this is B, this is 3 and this is 5. We have to find out EC. We have to find out EC. So to find out EC, we can apply Pythagoras theorem. So EC का whole square is equals to what? 5 square minus
3 square. 5 square minus 3 square. We'll get 25 minus 9, which is nothing but 16. So we'll get EC equals to 4. EC equals to 4. तो EC की वैल्यू क्या आई 4. EC is nothing but height of the triangle which is equal to breadth of rectangle, which is equal to breadth of rectangle. So EC की वैल्यू क्या आई 4, तो 4 इसकी ब्रेथ के इक्वल होगा. अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. लेंथ इज व्हाट 5 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बेस इज व्हाट 3 इंटू हाइट इज व्हाट, height is nothing but 4. Height is nothing but 4. So 5 4s are 20 plus 2 2s are 4, 2 3s are 6. This becomes 26 meter square. So the area for the given quadrilateral is 26 meter square. दो steps follow किए हमने. सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया. ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में, ट्राइंगल का एरिया लिखा, रेक्टेंगल का एरिया लिखा. अब हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी थी जो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. तो उसके लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें हाइट मिल गई, उसको हमने 4 को प्लेस किया क्वेश्चन में, एंड देन वी कैन फाइंड द आंसर.